I seek permission of the Honorable Chair to commence the session. Thank you, my Lord. I, Saurabh Kumar Singh, Officer on Special Duty, Madhya Pradesh State Judicial Academy, extend your respectful and heartfelt welcome to the third technical session of this state consultation on safeguarding the girl child. It is a great honor and privilege to have an esteemed panel chaired by Honorable Shri Justice Anand Pathak, Administrative Judge, High Court of Madhya Pradesh, Bench at Gwalior, and Chairperson, Juvenile Justice Committee, High Court of Madhya Pradesh. His Lordship brought innovative concepts such as social audit and Shaurya Didi for the welfare of vulnerable children, children in need of care and protection, women and persons with disabilities. Under his Lordship's guidance, Center for Child Rights, NLIU Bhopal, and Juvenile Rights Center, Zurich, DNLU Jabalpur, has been established for the interest of juveniles. Honorable panel is also joined by Shri Anil Gulati, Chief of Field Officer, OIC, UNICEF Bhopal. We are also joined by Young Change Makers, Ms. Ritika Godke, Shaurya Dal member and part of the Safe City Program, District Bhopal. We are also joined by Mr. Aditya Shah, Gender Champion, Safe City Program, District Bhopal. We are also joined by Ms. Maina Raju, Yuva Shakti Sangathan, Caregivers Network, District Jabalpur, and Ms. Mehak Chaurasia, President, Bal Sabha, and part of Adolescent Empowerment Program, District Damoh. As a humble respect to our resource persons, I would like to begin by welcoming them. May I humbly request Shri Sachin Sharma, Additional Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, to welcome Honorable Shri Justice Anand Pathak, Chairperson, Juvenile Justice Committee, High Court of Madhya Pradesh, by presenting a sapling as an expression of our deep regard and esteem. Thank you, sir. May I request Shri Dharmendra Tarda, Faculty Member, Madhya Pradesh State Judicial Academy, to welcome Shri Anil Gulati, Chief of Field Officer, OIC, UNICEF Bhopal, by presenting a sapling as a token of our respect and gratitude. Thank you, sir. May I request Srimati Namita Dwivedi, Assistant Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, to welcome Ms. Ritika Godke by presenting a sapling as a token of our respect. Thank you, ma'am. May I request Shri Anirudh Jain, Deputy Secretary Salsa, to welcome Mr. Aditya Shah by presenting a sapling as a token of our gratitude. Thank you, sir. May I again request Srimati Namita Dwivedi, Assistant Director, MPSJ, to welcome Ms. Maina Raju by presenting a sapling as a token of our regards. I would again request to respected ma'am to welcome Ms. Mehak Chaurasia by presenting a sapling as a token of our respect. Thank you, ma'am. The theme for this session is Ground Realities, Voices that Matter. वर्तमान समय में जब सूचनाएं सोशल मीडिया और सुर्खियों के जरिए तेजी से फैलती हैं, तब आवश्यकता है उन सच्चाइयों को सुनने और समझने की जो इन सब के पीछे छुपी होती हैं। ऐसी आवाज़ें जो धरातल से उठती हैं, जो वास्तव में समाज की धड़कन को दर्शाती हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि यह पैनल उन व्यक्तियों की आवाज़ों को एक मंच पर लेकर आया है जिनके अनुभव वास्तविक जीवन की गहराइयों से उपजे हैं। ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने केवल इन विषयों पर विचार नहीं किया, बल्कि इन्हें स्वयं जिया है, सहा है और कई अवसरों पर इन अनुभवों को अपनी शक्ति और उद्देश्य में परिवर्तित किया है। With this, may I most humbly request Honorable Chair to kindly deliver the opening remarks to commence the session. Esteemed panelist, my brother Atul, Amit and Ashish, sister Anuradha madam, other participants, ladies and gentlemen. Ground realities, voices that matter. अर्थात यथार्थ और उस यथार्थ को अनुभव करने वाले और उस यथार्थ का सामना करने वाली आवाज़ें ये आज हमारे सामने हैं। हम सब लोग शायद बंद कमरों में, एयर कंडीशन कमरों में या एक सेफ़ इन्वायरमेंट में हम लोग काम करते हैं, लेकिन ये जो
पार्टिसिपेंट्स हैं या दूसरे जो यहाँ हैं, जैसे 2 शौर्या दीदी हैं, मैडम मिन्ज और मैडम तिवारी, ये वो लोग हैं जो फील्ड पे काम कर रहे हैं। कई समस्याएं हैं, कई तरीके हो सकते हैं। उन समस्याओं के निदान का एक तरीका, चूँकि यहाँ पर गर्ल चाइल्ड के ऊपर बात हो रही है तो फोकस वही है। जुडिशियल साइड से भी कुछ सोचने में आया है, उसको हम लोगों ने कुछ इस तरह से एड्रेस करा कि बहुत से केसेस में देखा जाता है कि यहाँ पर कई मजिस्ट्रेट्स भी होंगे कि डिसमिस एंड डिफ़ॉल्ट होते हैं केसेस, कोई वकील आ नहीं पाते हैं केस के लिए और केस डिसमिस हो जाता है। तो जब वो रेस्टोरेशन होता है तो नॉर्मल प्रैक्टिस है कि 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये बार काउंसिल, बार एसोसिएशन में जमा करा दीजिए तो वो रेस्टोर हो जाती है। कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला तो जुडिशियल ऑर्डर से हम लोगों ने कुछ ये करा कि उन बच्चों, उन लॉयर्स को, उन लिटिगेंट्स को ये कहा कि बजाय 1000 रुपये के आप किसी मर्सी होम में, किसी अनाथालय में, किसी वृद्धाश्रम में, किसी बालिका आवास गृह में जाइए और वहाँ 1000 रुपये अगर आप यहाँ दे सकते हैं बार काउंसिल को तो 1000 रुपये की मिठाई और फल ले जाएं और वहाँ 1 घंटा रहें और ये बाद में आके बताएं कि आपको वहाँ कैसा लगा और वहाँ इम्प्रूवमेंट की क्या क्या गुंजाइश है। इसको सोशल ऑडिट नाम दिया है। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने उसको जनवरी में रिकॉग्नाइज करा है और उसका सर्कुलर निकाला है। एक ये है, उसके ऊपर कुछ ये वो बच्चे हैं जो एक्चुअल में ऑडिटर्स हैं, सोशल ऑडिटर्स। एक कॉन्सेप्ट है, जैसा शौर्या दीदी की बात हुई, बच्चियां जो परेशान हैं, वल्नरेबल हैं, रेप विक्टिम हैं, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, हैबियस कॉर्पस में आई हुई बच्ची है, कई बार बच्चियां जिनको रिलेक्टेंट हैं पेरेंट्स लेने के लिए वापस फैमिली फोल्ड में क्योंकि वो चली गई थी, उन बच्चियों के लिए ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, कांस्टेबल हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, उनको शौर्या दीदी बनाया जाता है एज मेंटोर, एज फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो इस तरह से वो लोग उनको तैयार करते हैं, उनका 10-15 दिन में उनसे टच में रहते हैं, बात करते हैं, जो उसकी स्पिरिट पे हमला है, उसकी इमोशंस को जो ट्रॉमेटाइज किया गया है उस बच्चे की, उसको वो रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो वो आज वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो चूँकि यथार्थ वाले, जो ग्राउंड रियलिटीज़ वाले ये बच्चे हैं, तो बेहतर है कि ये बताएं हमें समस्याएं कहाँ हैं और उन का समाधान क्या है। हमारी टीम जो है उसको नोट करेगी और जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पर कोशिश करेंगे कि वो सेंसिटाइजेशन के माध्यम से और कुछ वर्कशॉप्स के माध्यम से, कुछ दूसरे प्रोसीजर्स जो हो सकते हैं पॉसिबल, उसके माध्यम से कैसे हम सेंसिटाइज करें और उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें। प्लीज़ मिस्टर गुलाटी, शॉर्ट रखिएगा। Let them speak. Thank you, sir. Thank you, Honorable Justice Anand Pathak. Justice Atul Sridharan, sir. Justice Anuradha, ma'am, please. We have Anuradha Shankar, ma'am, also with here. We had Commissioner Sufia Farooqi, ma'am, also. I'd like to first start with congratulating Justice Anand Pathak, sir, because under your leadership, sir, we have a 5-year action plan to address the challenge of juvenile. So thank you very much for your leadership. Last year also I was there, so thank you for your leadership for continuing this work, because it is very powerful work to empower children, to bring that to advantage of children. So congratulations to you, sir. Madhya Pradesh has had a 5-year action plan under juvenile justice. We are taking steps, we are moving forward, but we still have challenges. We are a state which still has a very high infant mortality rate. We are a state which still has a high maternal mortality rate. Madhya Pradesh government was the first government to set up secure newborn unit many years back. But if you look at the data of secure newborn units, you still find skewed coverage. You still find girls getting less benefit than boys. So especially in districts like Morena, Gwalior, the Chambal and Morena region, we still have anemia, which is 55% among 15 to 19 years of girls. So that is a challenge we are working with.
we had a drop of child marriage, 9-point drop of child marriage happened in Madhya Pradesh. But if you still see, even after the drop, 23 out of 100 girls still get married under age of 18. That means the challenge remains. We have 50% of districts which have data which is higher than a national average in terms of child marriage. We have a challenge of violence against children. We are either second or third in India which has a challenge of violence against children. If you look at 100 children in India who are getting affected by violence, 13 are from Madhya Pradesh. So that is a big challenge we have. Madhya Pradesh government had started a strategic action plan on child marriage. It was a 5-year action plan which is till about 2024. Now it is a time, sir, and that's a request, if you can, sir, take it forward, is to have a strategic action plan on child marriage to be taken forward by government. That is important. We are requesting government and we are requesting the Honorable Sir also to have gender equality and equity programmed across all the departments. You know, in morning also I was saying that department needs to have an intersectoral collaboration, because every department is doing work on gender, but how do we bring them together and make a holistic plan for our state is important. I have a colleague here who was requesting that take-home ration is given to all Kishori Bal Yojanas, aspirational districts. But it will be good if take-home ration is given to all Kishori Balikas across the state. Similarly, we have Ladli Clubs, which is a very good initiative of Madhya Pradesh government, but it needs to be more empowerment needs to be done. And I'm so happy to, you know, we have Mehak, Meena, Aditya and others across here to listen to power stories. So I'll not like to stand between the power stories and us. And I was also given a mandate by Sir to keep it very short. So I've kept it short, but I want to acknowledge the state government for effort. But right is a time to start, you know, putting it into implementation, put more efforts toward girl child so that we don't see any challenge in the ground, and our state stands ahead of the work we are doing. So thank you very much, and thank you, sir. Thank you for your मैं विनम्र निवेदन करूंगा मिस रितिका गोडके से, जो शौर्य दल मेंबर हैं ऑन पार्ट ऑफ सेफ सिटी प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट भोपाल में, कि वे कृपया अपने अनुभव साझा करें। सभी को नमस्कार। मेरा नाम रितिका घोड़के है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी उम्र 20 वर्ष है और मैं अभी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो बिफोर स्टार्टिंग माय शेयरिंग, आज सुबह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस और परेशानियों की बात कर रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम, हमारे समाज में ये प्रॉब्लम है या स्टीरियोटाइप चैलेंज है। तो आइए अब देखते हैं कि इनके लिए हम क्या समाधान कर सकते हैं और क्या क्या एक्शंस हैं जो जिनके माध्यम से इनका समाधान देख सकते हैं। तो भोपाल में सेफ सिटी इनिशिएटिव फॉर संस्थाएं बच्चों के प्रोटेक्शन को लेकर काम कर रही हैं, जिसमें कि कुछ यूथ लीडर्स और जो चाइल्ड लीडर्स हैं, हम लोग इनके साथ जुड़कर बच्चों के प्रोटेक्शन में काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगी कि पहले तो हमें ऐसा लगता था कि ऐसे हमें उन फेडरेशंस की या फिर संगठनों की ज़रूरत है, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे संगठन हम युवाओं के कारण चल रहे हैं। पहले जब मैं एक चाइल्ड लीडर थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था मीटिंग्स वगैरह में जाना, और आज मैं एक यूथ लीडर हूँ और मैं प्राउडली कहती हूँ कि आज समाज में लोग मुझे इस तरह से देखते हैं कि अगर कोई परेशानी होती है तो मुझ तक आते हैं। और यही जो चेंज आया है, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी यूनिसेफ को, सभी संस्थाओं को। और सर्वप्रथम आज जो मैं यहाँ पे अपनी बात रख पा रही हूँ, इट्स अबाउट माई राइट टू पार्टिसिपेशन इन हाई कोर्ट। सो बिगेस्ट थैंक टू ऑल द हाई कोर्ट मेंबर्स। और इसी के साथ में जो प्रक्रिया हम भोपाल में चला रहे हैं, आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। हम उड़ान यूथ फेडरेशन एक संगठन हमने बनाया है जो कि युवाओं को केंद्रित और चाइल्ड प्रोटेक्शन के मुद्दों पे काम करता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूथ एक, क्योंकि हम एक सोसाइटी में एक नॉर्म बन गया कि यूथ एक गलती तरीके से जा रहा है। बट जो जितनी भी सुबह बात हुई थी, ऐसा लग रहा था कि नेगेटिव पॉजिटिव, बट मुझे लगता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हो सकता है कि कुछ युवा गलत अवस्था में जा रहे हैं, बट हमारे जैसे युवा संस्थाओं के माध्यम से सही दिशा में भी जा रहे हैं। तो उसी के माध्यम से जो हमारा उड़ान यूथ फेडरेशन है, हम बच्चों के प्रोटेक्शन को लेकर काम करते हैं। हम सभी जानते हैं इस बात को कि जब पार्टीज अपने इलेक्शन को प्रमोट करती हैं तो वो अपना एक मैनिफेस्टो जारी करती हैं। क्या आपने कभी बाल मांग पत्र के बारे में सुना है, चाइल्ड मैनिफेस्टो? यस और नो? यस,
हाँ, कुछ लोगों ने सुना है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, उड़ान यूथ फेडरेशन और सेफ सिटी इनिशिएटिव के माध्यम से हम सभी युवाओं का जो समूह है वो हर बस्ती में जाता है और हर बच्चे, हमारे साथ लगभग 3000 बच्चे इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं और हमारे साथ युवाओं की संख्या भी 3000 समथिंग है, जो कि इलेक्शन से 1.5 महीने पहले हमारी प्रोसेस होती है कि हम हर बस्ती में जाएं और बच्चों से उनकी आकांक्षाएं और उनको क्या चाहिए। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए कि हमारे देश का भी हम मान रहे हैं कि 40% इज़ अ यूथ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो उनको उतनी प्राथमिकता और उतनी उनकी भूमिका होनी चाहिए, उसी के लिए हमारा फेडरेशन जो है काम कर रहा है। तो इसके माध्यम से हम अपना एक चाइल्ड मैनिफेस्टो बनाते हैं जिसे हम बाल मांग पत्र के नाम से जानते हैं। इस प्रोसेस के बाद हमारा ये कर्तव्य है कि हम हर पार्टी, हम ये नहीं देखते कि कौन पार्टी अभी रनिंग है, हम जो अपोजिशन पार्टी से सारी पार्टीज़ में जाते हैं और अपना जो बाल मांग पत्र है वो उन तक देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम उनके साथ 1-on-1 कम्युनिकेशन कर पाएंगे तभी जो एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन रह जाता है गवर्नमेंट और चिल्ड्रन के बीच में, हमारी डिमांड्स उन तक डायरेक्ट पहुंचती है हमारे बाल मांग पत्र द्वारा। इसी के लिए हमारा एक प्रोग्राम भी होता है जिसमें हम डायरेक्ट उनसे बात करते हैं, जैसे कि आज हम एक मंच पे बैठे हैं, उसी तरह भोपाल में जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं उससे 1-1.5 महीने पहले हमारा इसी तरह का प्रोग्राम होता है जिसमें बच्चे अपनी आकांक्षाएं प्रतिनिधियों तक पहुँचाते हैं। साथ साथ जब हम उनसे बात करते हैं तो हमारा एक बॉन्ड होता है उनके साथ। हमारी प्रक्रिया में पार्षद, विधायक, महापौर, तो हम एडवोकेसी का काम करते हैं। यदि हमें कोई भी समस्या है हमारी बस्ती में, एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगी, ऐसे बहुत सारे मैनिफेस्टोस में हमारी बातों को शामिल किया गया है। जब हम बात करते हैं गर्ल्स की सेफ्टी की, तो स्ट्रीट लाइट की डिमांड बहुत ज़्यादा थी भोपाल में, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी एक बार ज़ोरदार ताली बजाएं कि हमारी बातें मैनिफेस्टो में शामिल भी की गई है। और जब हम बात करते हैं प्लेग्राउंड्स की, तो ऐसे बहुत सारी प्लेग्राउंड्स जो है हमारी बातों को सुनकर बनाए गए हैं। तो वही मैं बताना चाह रही हूँ कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमने बहुत सारे नेगेटिव टर्म्स को देखा, बट बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव टर्म्स हैं, और आगे भी हमें ऐसे वे फॉरवर्ड्स निकालने हैं कि कैसे हम सोसाइटी में जो स्टीरियोटाइप है, अगर हम बात करें स्टीरियोटाइप की, तो मैं अपना खुद का एग्जांपल देना चाहूँगी। जब मैं 16 साल की थी, मुझे फर्स्ट टाइम CSEL के प्रोग्राम में दिल्ली जाना था, तो मेरे पेरेंट्स ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। और क्योंकि हम 3 बहनें हैं, तो आप सोचिए कि जब घर में 3 लड़कियां हैं तो पापा मम्मी का बहुत वो होता है कि समाज वाले मामा मामी, जो हमारे रियल जो फैमिलीज होते हैं, वो हमें अलाउ नहीं करते। उस स्टीरियोटाइप को चैलेंज करके आज मैं सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे इंडिया में मैंने बहुत सारी फेलोशिप्स करी है। मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत एक डिफ़िकल्ट फेस था जो कि मैंने पार किया है। साथ ही साथ जब हम पार्षद और विधायकों के साथ मिलते हैं, तो हम चाइल्ड प्रोटेक्शन समिति, जो हमारी चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी होती है, उसका निर्माण करते हैं, जिसमें हमारे अध्यक्ष हमारी पार्षद होती हैं। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं बच्चों की सेफ्टी की, तो बच्चे जो रहते हैं वो स्लम्स में रहते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप है और ये सारी चीज़ें, वो आइडेंटिटीज़ पे भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। एक स्लम का बच्चा और एक हाई क्लास सोसाइटी का बच्चा, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक स्लम का बच्चा, उसके पास वो राइट्स और वो सारी चीज़ें नहीं है, वो प्रिविलेजेस नहीं है, और उनके प्रोटेक्शन के लिए वो नॉर्म्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बड़ी सोसाइटी का बच्चा है तो उसके पास वो सिक्योरिटी नॉर्म्स हैं, वो सिक्योर है, वो एजुकेशन पा रहा है। लेकिन हम जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए ऐसी चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुल 12 से 13 सदस्य होते हैं। और जो बच्चों का नशा होता है, बाल विवाह होता है, बाल मजदूरी होते हैं, ऐसे केसेस में हम उन पर काम करते हैं। मैं अपना ही एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि मेरा एक दोस्त था जो 18 वर्ष का था और लीगली चाइल्ड मैरिज हो रही थी। तो बहुत ऐसा सिचुएशन था कि मैं उसकी हेल्प कैसे करूं। तो मुझे उसने शेयर किया कि मुझे शादी नहीं करनी है। तो फर्स्टली तो मैंने अपनी दीदी से कंसल्ट किया, वो भी यहाँ पे बैठी हुई है, जो कि बहुत हेल्प करती है। तो मैंने उनसे कंसल्ट किया कि दीदी हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज थोड़ा समय, हाँ, सिर्फ ये केस शेयर कर। हाँ, तो फिर
फिर उसके हिसाब से हमने उसकी हेल्प करी है। और इसी जब हम आज उसका जो चाइल्ड मैरिज है वो रुका है और वो आज अपनी जॉब कर रहा है, तो वो हमेशा मुझे थैंक यू कहता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सिर्फ उसकी मदद नहीं करी है, मैंने एक सोसाइटी की जो प्योरिटी स्टोरीज होती है कि ठीक है फोर्सफुली शादी हो जाती है, उसको चैलेंज किया है। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम ऐसे बेयरफुट काउंसलर्स की तरह काम करते हैं। भोपाल में 300 बेयरफुट काउंसलर्स हैं, तो मुझे लगता है एक बार टीम के लिए ज़ोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें वो ट्रेनिंग और वो फर्स्ट एड सपोर्ट दिया है, जिसके माध्यम से आज हम एज अ चेंज मेकर, एज अ यूथ लीडर काम करें। सो रियली थैंक्स टू यूनिसेफ एंड हाई कोर्ट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। एक ऊर्जा और आशा जो है आपके इससे सभी प्रतिभागियों में और जो सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति हैं उन तक प्रेषित हुई है। अब मैं निवेदन करूंगा मिस्टर आदित्य शाह, जो जेंडर चैंपियन है सेफ सिटी प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट भोपाल से, कि कृपया समय 5 मिनट के समय को ध्यान में रखते हुए अपने अनुभव साझा करें। पहले तो नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम आदित्य शाह है और मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। तो मैं एज अ जेंडर चैम्पियन सेफ सिटी उड़ान यूथ फेडरेशन के साथ जुड़ा हूँ और मेरे जैसे ही 1200 जेंडर चैम्पियंस हमारे सिटी में हैं। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं सेफ सिटी से जुड़ने से पहले कैसा था और अब मेरे अंदर क्या बदलाव है। सेफ सिटी से जुड़ने से पहले 2021 से लेकर 23 तक जो मेरे अंदर था कि मैं नशे का आदी था और कई बार मैंने दोस्तों में अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए, क्योंकि अगर जो दोस्त मेरे करते थे कि वो लड़कियों को छेड़ना, उन पे कमेंट पास करते थे, और अगर जो ये चीज़ अगर मैं नहीं करता था तो वो मुझे कहते थे कि तू क्या है, तू मर्द नहीं है क्या, वो मुझे बुली करते थे। तो मैंने ये चीज़ करना शुरू की, मैं लड़कियां छेड़ने लगा। यहाँ तक कि मैंने जब अपना एक बार कैलकुलेट किया, मैंने 3 साल में 2,70,000 रुपये नशे के ऊपर बर्बाद कर दिए थे। उससे मुझे ये पता चला कि मैंने अपने अंदर क्या, उस टाइम मैंने क्या चीज़ें खो दी। उस टाइम मेरी दादी भी ख़त्म हो गई जिनके साथ मुझे होना चाहिए था। तो अब मैं ये बताता हूँ कि मेरे अंदर क्या बदलाव हुआ। पहले तो मैं अपने घर में काम नहीं करता था। मुझे लगता था कि घर के काम करना महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मर्द का काम यही होता है कि वो कमाए और घर में ला के दे। तो सेफ सिटी से जुड़ने के बाद, उड़ान यूथ फेडरेशन से जुड़ने के बाद मुझे ये सब चीज़ें समझ आई और अब मैं अपने घर में मम्मी पापा की मदद करता हूँ और एक टाइम का खाना, मुझे गर्व है ये कहते हुए कि मैं अपने घर में एक टाइम का खाना खुद ही बनाता हूँ। और पहले जो मेरे दोस्त लोग मुझे लड़कियों को छेड़ने के लिए कहते थे और मैंने छेड़ा भी, तो उसकी वजह से मेरी सोसाइटी में एक इमेज ख़राब हो गई थी, जो कि अब बहुत अच्छी हो गई है। और मैं अब लड़कियों से उनके लिए पीरियड्स पे बात करता हूँ, उनके लिए सब काम करता हूँ। और लड़कियाँ भी मेरे जितने भी आसपास की हैं, सब मुझे खुल के अपनी चीज़ें, चैलेंजेस जो भी उन्हें आते हैं किसी काम में, तो वो मुझे खुल के बताती हैं। और मैंने यूथ के साथ जुड़ के कई जगहों पे नुक्कड़ नाटक किए हैं नशे को भी लेकर। और मैंने अपने जितने मेरे ग्रुप है, मेरे 11 दोस्तों का ग्रुप है, उसमें से मैंने अधिकतर जितने हैं 10 लोग हैं जिनका मैंने पूरा नशा छुड़वा चुका हूँ और उनसे भी मैंने आगे बात की है। और वो भी अब अपने घर में सैनिटरी पैड के बारे में बात करते हैं और पीरियड्स के बारे में बात करते हैं। और मैं अभी ये चाहता हूँ कि ऐसी एक हमारे लिए एक स्पेस मिल जाए और मैं चाहता हूँ कि हम भी स्कूल्स में जाके सैनिटरी पैड्स को लेकर सर लड़कों को जागरूक कर सके कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो इससे आपके लिए भी अच्छा होगा। और जैसा मैंने रिसर्च किया है, मेरे पास भी कई सवाल आते थे कि तू ये सब क्यों कर रहा है, तुझे इससे क्या मतलब है, तू क्यों कर रहा है। तो मैं ये बस यही कहना चाहता हूँ उनसे कि ये चीज़ अगर हम नहीं समझेंगे, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, क्योंकि हमारी भी घर में बहन है, कल को हमारे भी जब हम भी पिता बनेंगे या फादर बनेंगे या जो भी कुछ है, तो हमारी बेटियों को भी इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर अभी ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है जिसमें लड़कियां सेफ अभी नहीं है और उनके बारे में अगर अभी हम नहीं सोचेंगे तो फिर आगे चल के और ये चीज़ बिगड़ेगी। और मैंने कई काम किए हैं, जैसे कि मैं अपने स्कूल्स में और बाहर भी मैंने कचड़े के लिए भी, सेफ सोसाइटी के लिए बहुत काम किया है। थैंक यू।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अनुभव निश्चित ही समाज में पितृसत्तात्मक सोच एवं नशा मुक्ति के विरुद्ध जो लड़ाई है उसको सकारात्मक रूप से मजबूत करेगी। अब मैं निवेदन करूंगा मिस मैना राजू, युवा शक्ति संगठन केयर लीवर्स नेटवर्क डिस्ट्रिक्ट जबलपुर से, कि कृपया वे अपना अनुभव साझा करें। हेलो, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे ऐसा मौका दिया आप लोगों के साथ मेरा अनुभव शेयर करने के लिए। मेरा नाम मैना है। मैं इस वक्त जबलपुर में लक्ष्मी नारायण कॉलेज से BCA कर रही हूँ और साथ ही साथ जॉब भी करती हूँ आदित्य हॉस्पिटल में डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट में। मैं एक केयर लीवर हूँ। तो केयर लीवर वे बच्चे होते हैं जो 18 साल के बाद संस्थाओं से निकलने के बाद बाहर पढ़ाई कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं। तो हम केयर लीवर्स मिलके एक संगठन बनाते हैं, युवा शक्ति संगठन। वो संगठन से हम एक दूसरे की मदद कर पाते हैं। दूसरा, ये संगठन हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने का एक जरिया है, जिससे हमें जो भी चुनौतियां आती है ज़िंदगी में 18 साल के बाद हमें वहाँ से निकल के समाज को फेस करना होता है। और समाज को फेस करने में हम उतने कॉन्फिडेंस से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम संस्था में रहते थे तो संस्था में सिर्फ हम जितने बच्चे रहते हैं या जितने स्टाफ रहते हैं वहाँ पे जो हमारा केयर करते हैं, हम बस उनसे ही मिलते जुलते हैं। बाहर निकलने के बाद हमें पूरे समाज से मिलना रहता है, काम रहता है, तो हम उसके लिए अच्छे किसी से बात नहीं कर पाते हैं। हमें बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, जैसे कि हमें डॉक्यूमेंटेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। टिकट बुकिंग कैसे करना है, आधार कार्ड में नंबर लिंक नहीं है तो वो हमें कहाँ से कराना है, ATM कैसे पिन जनरेट करना है, ऐसा में बहुत सारी समस्याएं आती है, चुनौतियाँ आती हैं। अगर कोई फ्रॉड हो गया हमारे साथ तो हमें ये भी नहीं पता होता है कि हम किसके पास जाए, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया होता है, तो हमें ये पता ही नहीं होता है। फैमिली वाले बच्चे जो होते हैं उन्हें ये चीज़ उनके पेरेंट्स हमेशा सिखाए होते हैं कि कौन सी प्रायोरिटी पहले होती है, कौन सी बाद में होती है, क्या चीज़ किससे क्या बात करनी है, किससे क्या बात नहीं करनी है। तो उन्हें अगर कोई चीज़ करना होता है तो उनके पेरेंट्स उनके सपोर्टिव रहते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े हो जाए, लेकिन उनके पास पेरेंट्स होते हैं। लेकिन हमारे पास 18 साल तक के लिए ही सपोर्टिव रहते हैं और उसके बाद हमें पता ही नहीं होता है कि हमें किससे बात करना है, किससे लेना है, किससे समझना है कि हम ये डिसीज़न कैसे लें। उसके बाद हमें जो करना है हमें हमारे डिसीज़न लेने होते हैं और हमें खुद का ही करना होता है। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि जो 15 से लेकर 18 साल तक के बीच के उम्र में जो संस्थाओं में बच्चे रह रहे हैं, अगर उन बच्चों को इसी उम्र में ये चीज़ें जो बाहर हम 18 के बाद सीख पा रहे हैं, हालांकि हमें संस्था में सारी चीज़ें सिखाई जाती है और बहुत अच्छे से सिखाई जाती है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस बाहर आने के बाद ही मिलते हैं। जैसे कि हमें ट्रेनिंग के लिए अगर कोई वोकेशनल ट्रेनिंग करनी है तो कैसे करनी है, अगर हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो हमें कहाँ पे जाने के बाद हमें कास्ट सर्टिफिकेट बनवा पाएंगे या फिर कहाँ से हमारे काम हो जाएंगे, ये चीज़ें अगर हमें वहाँ से बताई जाएगी तो अगर मुझे लगता है कि बाहर आने के बाद चुनौतियाँ थोड़ी हमारे लिए कम हो जाएंगी। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर संस्था में ये चीज़ें अप्लाई की जाए तो उनके लिए चुनौतियाँ कम हो जाएगी। थैंक यू। आपके अनुभव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विनम्र निवेदन करूंगा मिस महक चौरसिया, जो अध्यक्ष है बाल सभा एंड शी इज अ पार्ट ऑफ एडोलसेंट एम्पावरमेंट ग्रुप डिस्ट्रिक्ट दमोह, कि वे कृपया अपना अनुभव साझा करें। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम महक चौरसिया है। मैं क्लास 11th वायु की छात्रा हूँ। मैं जिला दमोह के ब्लॉक बटियागढ़ के ग्राम केरवना में ग्राम बाल सभा के अंतर्गत अध्यक्षा हूँ। हम लोग पहले बाल सभा को नहीं जानते थे। हमारे गांव में जब से बाल सभा प्रारंभ हुई है, हमने बाल सभा को जाना, समझा, पहचाना कि बाल सभा क्या होती है। अब हम लोगों ने बाल सभा के अंतर्गत हमारे गांव के सरपंच जी को अपनी समस्याएं बताई, जैसे कि हमारे स्कूल में पंखे नहीं थे, खेल मैदान नहीं था, बाउंड्री वॉल नहीं थी। अगर जैसे कि हम लोग क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई भी कर रहे हैं तो मतलब पंखे नहीं चल रहे हैं तो हम लोगों को मच्छर काट रहे, बहुत परेशानी होती थी। ये सब हम लोगों ने बाल सभा के अंतर्गत
सरपंच जी को बताया तो उन्होंने हमारी बातों को प्राथमिकता दी और उसे पूरा किया। अब हमारे स्कूल में सांस्कृतिक मंच, पंखे, सबकी व्यवस्था हो चुकी है। हम चाहते हैं कि हमारी जैसी और अन्य बालिकाएं हैं जो सब बाल सभा मतलब अपनी भागीदारी लें बाल सभा में, क्योंकि और हम लोगों ने मंत्रियों जो भी मंत्रियों का चयन हुआ था, जैसे कि शिक्षा मंत्री, तो उन्होंने बताया कि जो लड़कियां साला त्यागी हैं, जो साला नहीं आती हैं, उन लोगों को हम लोगों ने सलाह दी कि जैसे कि व्यावसायिक शिक्षा IIT के बारे में बताया कि आप चाहें तो उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है जो लड़कियां साला त्यागी होती हैं उन्हीं का बाल विवाह होता है, क्योंकि वो कुछ कह नहीं पाती हैं कि क्यों आप लोग हमारा बाल विवाह मतलब शादी करवा रहे या कुछ भी। तो हम लोगों ने सबसे पहले उन्हीं लोगों को समझाया कि आप आगे आइए, आप शिक्षा लीजिए, कि ये मतलब जो स्कूल नहीं जाती हैं उन्हीं को बताया कि आप लोग आइए आगे और आप पढ़ाई के प्रति जागरूक किया उन लोगों को कि आप घर में बैठ के क्या करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वक्त की रोटियां बनाएंगी, घर का पूरा काम करेंगी। अगर आप पढ़ेंगी तो आत्मनिर्भर बनेंगी। अगर कोई भी डिसीजन लेना है किसी भी प्रकार का, वो स्वयं खुद ले सकेंगी, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगी। और जब से हमारे यहाँ बाल सभा प्रारंभ हुई है, जिले में मतलब अधिकतर स्कूलों में पॉक्सो शिकायत पेटी की स्थापना की गई। हमारे यहाँ पर हर 15 दिन में एक बार वो पेटी खोली जाती है। अगर किसी भी लड़की या लड़के को स्कूल आने या जाने में कोई भी समस्या होती है, कोई आपको परेशान करता है, तो वो समस्याएं उस पॉक्सो शिकायत पेटी में लिख कर डाल सकती हैं। और हम लोगों ने उन्हें बताया जैसे कि अगर गुड टच और बैड टच को समझाया हम लोगों ने, और उन लोगों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया। अगर किसी भी लड़की को कोई भी समस्या है तो वो उमंग किशोर हेल्पलाइन नंबर 14425 इस पर कॉल करें, तो मतलब जो भी प्रॉब्लम है आप उससे साझा करें। वरना आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगी जी और टीचर्स को भी बता सकते हैं कि हमें ये परेशानी है, उसके बारे में बताया हम लोगों ने। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ विद द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल चेयर, मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा शौर्य दीदी मिस संजीता मिन्स को, जो उप निरीक्षक है मध्य प्रदेश पुलिस में, कि वे कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। Yes sir, yes sir. Sir, felicitation. Sir, please बैठे. May I request Shrimati Namita Dwivedi ma'am to please come on the dais and welcome Shrimati Sanjita Mins by presenting a sapling as a mark of our respect. Thank you so much, ma'am. मैं निवेदन करूंगा मिस संजीता मिन्स से कि वे कृपया अपना अनुभव साझा करें। सभी को जय हिंद, नमस्ते। और मैं सबसे पहले तो सर को धन्यवाद देती हूँ, हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय पाठक साहब ने मुझे शौर्य दीदी के रूप में एक काम सौंपा, जिसको मैं भी कर रही हूँ। हाँ जी। तो शौर्य दीदी एक मतलब शौर्य का नाम ही मजबूती है, बचपन से ही। महिलाओं के पास पावर बहुत होता है, मतलब पुरुषों से 8 गुना ज़्यादा पावर, ऐसे मैंने सुना है। सहन शक्ति, सही सुनता और धैर्य और हर चीज़ को समझने की बहुत पावरफुल होती हैं महिलाएं, जो पूरे घर परिवार संभालती हैं। और सर ने जो मुझे काम दिया था उसमें 15 साल की एक बच्ची थी, जिसको कि देह व्यापार में उतारा गया था, जिसको होटल से रेस्क्यू किया था। उसको हम लोगों ने पीड़िता को उसको बनाया फरियादिया, उसके कहने पर FIR किया, और उसमें जो बहुत सारे आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया।
और चालान भी पेश हो गया अभी। तो वो 15 साल की बच्ची जो कुछ समझ नहीं पाते हैं, बच्चों को घर से किस तरीके से बहला फुसला कर, आज भी हमारे समाज में ऐसा काम होता है, उसको लेके आते हैं, मतलब किस काम के लिए उतार रहे हैं उनको समझ नहीं होता है। बच्चियां क्या समझती हैं कि जो उनके साथ हो रहा है वो सब उनका एक पार्ट ऑफ लाइफ है, जो होता नहीं है। उनको सही और गलत का समझ नहीं होता है, जिसकी वजह से वो इस काम में उतर जाती हैं और कुछ बोल भी नहीं पाती हैं। और उनको कोई समझने वाला भी नहीं होता है कि जैसे उसकी मम्मी भी नहीं थी, उसके पापा रिक्शा चालक हैं, तो वो कुछ किससे बोलती, वो स्कूल जाती नहीं थी। फिर जैसे उसको रेस्क्यू किया और उसको पीड़िता बनाकर और उसको फरियादिया बनाकर उसके लिए काम किया, तो वो आज अपने पिताजी के साथ में वो बहुत खुश है। और सर ने भी बहुत मदद की थी, एक महाधिवक्ता सर हैं, उन्होंने भी मदद की थी। हम लोग तो करते ही हैं और आगे भी भविष्य में शौर्य दीदी के रूप में काम के लिए सभी को ज़रूरत है। और मैं कहती हूँ कि वैसे भी सभी शौर्य दीदी हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी शौर्य दीदी का काम कर रहे हैं। जो यहाँ पर है वो तो कर ही रहे हैं, बाकी बाहर का तो पता नहीं है। भविष्य में जैसे शौर्य दीदी के रूप में सर ने बोला जैसे अपॉइंट करते हैं, सर हम लोग के पास काम बहुत होता है, काम के साथ में ये काम करना बहुत गर्व की बात है। और जैसे मैं तो बहुत दयालु प्रवृत्ति की महिला हूँ, तो मैं वैसे ही काम करती हूँ, बिना सोचे समझे, दिमाग से नहीं सोचती, दिल से सोचती हूँ बस। तो अभी भी वो मेरे संपर्क में है। ये केवल नहीं सर, एक 8 साल की बच्ची के साथ में भी उसके पिता ने घर में ही गलत किया था, तो उसके साथ भी उसका FIR किया, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। फिर उसको समाज में, जैसे बच्चियाँ डिप्रेस हो जाती हैं, फिर उनको बाहर निकालने के लिए उनको काउंसलिंग करना, मैं अच्छी काउंसलर हूँ, बड़े प्यार से समझाती हूँ मैं बच्चियों को। तो उनको कैसे, उसको मनोबल उनका कैसे बढ़ाना है, ये बहुत महिलाएं समझ पाती हैं कि बच्चियों को क्या समझना है, क्या समझाना है। बस उसी पे काम कर रही हूँ मैं। बहुत सारे आते हैं, एक नहीं है मेरे पास, तो बहुत सारे हैं, मैं किताब लिखूँ तो भी कम पड़ेगा। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी सर आपका। थैंक यू सर। मैं तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। आप लोगों को इसीलिए दिया कि आप लोग की जो समस्याएं हों और आप ग्राउंड पे हैं, तो और क्या समाधान हो सकते हैं वो सब आप बताएं। और भी कुछ दिमाग में हो तो आप बोलें, यहाँ सब लोग आपको सुनने के लिए हैं। हाँ जी सर, मैं बोलती हूँ सर। हाँ, आपकी वो डायरी आगे रख दें आप चाहें तो। और डायरी आपकी सर, समय सीमा का भी ध्यान रखना है मुझे। अच्छा, हाँ, नहीं लेकिन कोई बात हो तो आप बता दें ऐसी और भी। मेरा तो सबसे यही कहना है कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बच्चियाँ और बच्चे सब हमारे समाज के निर्माताएं हैं। हम सब मिलकर एक समाज को तैयार करते हैं और ये समाज हमारे लिए ही होता है। हम अच्छा देंगे तो हम अच्छा पाएंगे, बुरा देंगे तो हम बुरा पाएंगे। बस इसी पर काम करना है हमको। देखिए, ये सेशन में थोड़ा समय कम था, नहीं तो इन लोगों के अनुभव और लेते। जैसे मैडम रितिका ने बहुत अच्छी बात ये चाइल्ड मैनिफेस्टो की बताई है कि एक तरह से ये एक मैनिफेस्टो जो है वो पॉलिटिकल या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को कंपेल कर सकता है कि अभी तक जो है वोटर्स को लुभाने की बातें होती हैं, चाइल्ड को, या चूंकि वो वोटर नहीं है तो इसलिए उसको लुभाने की कोई बात नहीं होती है। तो चाइल्ड मैनिफेस्टो भी एक अपने आप में एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। और जो एनफोल टीम से मैं कहूँगा कि उसको एक पॉइंट के तौर पे नोट करे वो, ताकि हम उसको आगे फॉरवर्ड करें कि किस तरह से इसको, कोई अगर किसी का सजेशन हो कि इस चाइल्ड मैनिफेस्टो को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करा सकते हैं या इफेक्टिव चार्टर के तौर पे कैसे कर सकते हैं, ये बताइएगा। दूसरा, एक विशाल ने, मिस्टर आदित्य ने जो पीयर प्रेशर बताया, ये पीयर प्रेशर बड़ी खतरनाक चीज़ है। ये पीयर प्रेशर आपसे वो कराती है जो कि आपसे कोई गन पॉइंट पे नहीं करा सकता, वो पीयर प्रेशर कराता है। अगर ड्रग्स नहीं लेते हैं तो मर्द नहीं है, अगर लड़कियां नहीं छेड़ रहे हैं तो मर्द नहीं है। मोटरसाइकिल की हॉर्स पावर, अगर आप चला रहे हैं मोटरसाइकिल और हॉर्स पावर
और आपकी नसों में नहीं आ रहा है तो आप मर्द नहीं हैं। और आप लड़कियों के साथ अगर ढंग से शराफत से बात कर रहे हैं तो मर्द नहीं है, घर के काम कर रहे हैं तो मर्द नहीं है, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ इज्जत से बात कर रहे हैं तो मर्द नहीं है। ये हमारा एक स्टीरियोटाइप पीयर प्रेशर ने बना रखा है, क्योंकि वो 2-5% जो बच्चे बदमाश रहते हैं वो बच्चे आपको कंपेल करते हैं, आपको परसुएट करते हैं, आपको प्रेशराइज करते हैं। उस पे क्या हो सकता है, ये बच्चे लोग अगर कभी कोई एक आप बताएं कि स्कूल एजुकेशन में किस तरह के वर्कशॉप्स करे जाएं कि पीयर प्रेशर, क्योंकि पीयर प्रेशर बड़ी रैगिंग कराती है, पीयर प्रेशर मर्डर कराती है और ये सारे अपराध कराती है, तो इसको चैलेंज करना है। एक गाना मुझे याद आता है, अभी तक मैं सोचता था कि लॉयर्स हैं, जजेस हैं, पुलिस वाले हैं और डॉक्टर्स हैं, दे आर हीलर्स ऑफ सोसाइटी, दे हील। दूसरे प्रोफेशंस भी होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं, लेकिन वो उनमें हीलिंग कैपेसिटी नहीं है। लॉयर्स में, जजेस में, पुलिस वालों में एक एफआईआर होती है, जैसे मैडम ने बताया 15 साल की बच्ची है, देह व्यापार में थी, हो सकता है नॉर्मल ये चार्जशीट पेश करते, भाई जाओ अपने घर जाओ, जो करना है। शौर्या दीदी बनी उसकी और उसका मेंटोरिंग करा, अभी भी कर रही हैं। उसकी वो जो फाइल थी FILE वो लाइफ में कन्वर्ट हो गई LIFE में। अल्फाबेट सेम है जो मॉर्निंग में मैंने कहा, फाइल को लाइफ में तब्दील करना है। FIR अगर हीलर है तो हम FIR को कान देंगे, FIR सुनेंगे। लड़की कह रही है मुझे छेड़ रहे हैं, आपने अगर कहा नहीं लड़कियां हैं छेड़ते हैं क्या हुआ, तो वो लड़की पे आपने मलहम तो लगाया नहीं और नमक छिड़क दिया, और वहीं आपने उसकी एक FIR को एकदम या उसकी कंप्लेंट को ध्यान दिया, तो वो लाइफ जो है, वो फाइल जो थी वो लाइफ में कन्वर्ट हुई। वैसे ही डॉक्टर्स का है, वैसे ही लॉयर्स का है और जजेस का है। तो गाना जो मुझे वो 2 लाइन याद आ रही थी, एक फिल्म आई थी नया दौर, उसमें एक गाना था कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके बोझ उठाना। तो सोसाइटी में अब हर व्यक्ति को अगर लाइक माइंडेड है, वेल मीनिंग है, वेल इंटेंडेड है, तो उसे हीलर का रोल प्ले करना है। उसके अगल बगल, चाहे उसके घर में काम करने वाला आदमी हो, काम वाली बाई हो, या उसके घर में काम वाली बाई के बच्चे हों, या हमारा स्टाफ हो, अगर हम बड़े जॉब में हैं तो हमारे आसपास जो लोग हैं, अगर हम उनको एक हीलिंग टच देंगे तो वो चेन बनेगी, एक दूसरे का साथ मिलेगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। एक ये थॉट है। और बाल सभा जो एक है, ये पंचायत डिपार्टमेंट ने शुरू करी, ये बड़ी अच्छी बताई इन्होंने। ये बच्चे ये बाल सभा के प्रोडक्ट हैं, तो बाल सभा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उस पर भी विचार किया जाए। और एक जेंडर इंटीग्रेशन जो गुलाटी साहब कह रहे हैं कि बच्चों को भी बताया जाए ये पीरियड्स के बारे में, बच्चों को भी बताया जाए फीमेल्स की कुछ प्लस और ये वाली चीज़ें, ताकि बच्चे, जैसे आज हमको ज़्यादा से ज़्यादा आदित्य शाह जैसे लोग चाहिए हैं जो महिलाओं को, बच्चियों को समझें। ये कुछ थॉट्स थे, इस पे अगर कोई क्वेश्चंस हो तो इनवाइटेड हैं, और कोई सजेशन हो तो गुलाटी जी इज़ वेलकम। सर थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग फॉरवर्ड। बस सर एक ही लास्ट ये था, पहले तो let's give a big hand to these power stories, sir. These are real power stories for us to listen to them, and they are like leading examples of positivity in our society. We had requested, sir, वो जैसे child marriage का plan था उसको आगे कैसे लेके चल सके, that is good, that's a very good thought. Also, sir, gender stereotype you already said, gender integration, that's very important. Sir, हमारे यहाँ जो डाटा निकल के आता है सिक्के न्यूबॉर्न यूनिट का, खासकर ग्वालियर चंबल रीजन से, it says very clearly कि गर्ल चाइल्ड इस कम एडमिशन है, मेल के ज़्यादा एडमिशन है। इसका मतलब बड़ा क्लियर इंटीग्रेशन है कि कहीं ना कहीं फीमेल और मेल में डिवाइड है, तो उस पर थोड़ा एड्रेस करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट इज़ काइंड ऑफ टेकिंग फॉरवर्ड दैट एग्जांपल। इनफैक्ट रिसेंटली वी हैड एग्जांपल जहाँ पर चाइल्ड हैड डाइड, स्पेशली अ गर्ल चाइल्ड ऑफ अंडर माल न्यूट्रिशन, बिकॉज शी वॉज नॉट गिविंग दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट नहीं दिया था क्योंकि लड़की थी। तो इस चीज़ को तोड़ने की ज़रूरत है। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड लास्ट में एक रिक्वेस्ट किया था कि सर जो किशोरी बाल योजना में सरकार इज़ डूइंग अ वेरी गुड वर्क इन टर्म्स ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में टेक होम राशन के लिए, इफ दैट कैन बी एक्सपेंडेड टू ऑल full state, that will really helpful. So thank you again, sir, and thank you to all powerful stories. Thank you very much, sir.
एक सजेशन ये भी है कि शौर्या दीदी को हम किस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं, इस पे भी थोड़ा सा विचार किया जाए। मंचा सिंह मैडम रश्मि शायद इधर हैं। मैडम वेलकम, यू आर वेलकम हियर। और जो डिस्कशंस हुए हैं तो वो आशा है कि आप उसको थोड़ा सा वो नोट डाउन होंगे और वो आप तक पहुंचेंगे, तो आप उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कराने की स्थिति में लाइएगा उसको। थैंक यू सर। मैं जैसा आपने कहा जेंडर के और उसके बारे में, तो सर मेरा एक सुझाव ये भी है कि अगर हम हर स्कूल में महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार ऐसा एक सेशन लें जिसमें जेंडर के बारे में और मोर देन पीरियड्स के बारे में बताया जाए तो आगे भी अच्छा होगा। एनी सजेशन? माननीय श्री जस्टिस आनंद पाठक साहब, मंच पर आसीन महान अनुभवशाली जो हमारी व्यक्ति बैठे हुए हैं और यहाँ हॉल में उपस्थित समस्त सहभागियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर स्वाति चौहान, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट मंडला। जैसा कि हमारे ये सत्र है ग्राउंड रियलिटीज़, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जब हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसे मामले भी आते हैं सर जिनमें 376 पॉक्सो एक्ट लगी होती है, जिसमें बालिका और बालक दोनों ही नाबालिग होते हैं और बात होती है प्रेम संबंध की। सर यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं जब हम उनसे चर्चा करते हैं या जब मेंबर्स उनसे बात करते हैं तो ये चीज़ समझ में आती है कि शायद उन्हें ये पता ही नहीं है कि जब उनमें हार्मोन्स में परिवर्तन होता है और एक जेंडर का दूसरे जेंडर के प्रति आकर्षण होता है तो उसको किस तरह से कंट्रोल करना है। शायद इस विषय में जो है वो अवेयरनेस और जागरूकता की कमी है। यदि इसको हम स्कूलों में एज अ सब्जेक्ट के रूप में लेकर आते हैं और कहीं ना कहीं इसको हम अध्यात्म से भी जोड़ने का प्रयास करते हैं, अध्यात्म से लाइक मेडिटेशन, कि किस तरह से जो है अगर ऐसी हार्मोन्स में अग्रेशन आ रहा है या ऐसे हमारे मन में ख्याल आ रहे हैं कि हमें जो है हम किसी दूसरे जेंडर के प्रति आकर्षित हो रहे हैं या हमारे मन में यौन से संबंधित को जैसे ख्यालात आ रहे हैं तो उनको किस तरह से जो है वो कंट्रोल किया जा सके। यदि इस तरह की योजनाएं या कुछ स्कूलों के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा या उनके स्कूल में टीचर्स उसको बताएंगे तो सर उससे एक फ़ायदा ये हो सकता है कि इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं वो कम होंगे और बच्चे इस चीज़ से अवेयर होंगे। क्योंकि अभी वर्तमान में जिस तरह की मूवीज़, जिस तरह के OTT प्लेटफॉर्म में या हम यूट्यूब या हम बाकी चैनल्स की बात करें, जो भी चीज़ें बच्चों को दिखाई जा रही हैं या हम सभी जिन चीज़ों को देख रहे हैं उससे अब बच्चा, क्योंकि 24 आवर्स वो बच्चे माँ बाप की कस्टडी में या टीचर्स की कस्टडी में तो नहीं होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अलग से छिपकर ऐसी चीज़ों को देखते हैं और देखने के बाद जब उनके अंदर ये सारे चीज़ें करती हैं कि मतलब उनके अंदर यौन को लेकर जो है काफ़ी कुछ अग्रेशन आ जाता है तो फिर वो रेप कर बैठते हैं या किसी को लेकर भाग जाते हैं या लड़कियां छेड़ते हैं, जैसे अभी भाई ने बताया। तो इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करने की आवश्यकता है और इस पर शायद काम किया जाना चाहिए। डॉक्टर तिवारी ने पहले के सेशन में बताया भी था, शायद आप अगर रही हो, कि वो एक स्पिरिचुअलिटी भी एक मोड है कि उनको पैसिफाई करने का उस समय जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। और अगर यहाँ तक स्कूल एजुकेशन या उसमें है, मैडम रश्मि, अगर आप लोग इसको कुछ इनकॉर्पोरेट किस तरह से, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव इशू है कि समझाने वाले भी उतने समझदार हों कि वो ढंग से समझाएं इस चीज़ को, कुछ मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जाएं स्कूल एजुकेशन में, वो करें। मैडम टुकराल है, अगर इनके पास कोई सजेशन हो इसके लिए कुछ, अगर सर सजेशन तो है, पर सर मैं चाह रही हूँ कि मैं इसमें और अच्छे से लिखकर जो है वो माननीय कमेटी आप दीजिए। आप हमारी जो भी जिन किसी के सजेशंस हो वो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को आप दीजिएगा जो है हाई कोर्ट की, तो उसको हम स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट से जो हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं तो उन मीटिंग्स में हम वो इश्यूज़ को रखेंगे और कैसे उसको सलूशन भी बताइएगा आप उसका। कि और कोई आपको सर एक छोटा सा मुद्दा और बताना चाहूँगी कि जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में एज अ प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हैं सर, तो तब ऐसे मामले भी देखने पर आते हैं कि जहाँ पर जो बालिका है वो विक्टिम है और बालक जो है वो भी जो है वो CCL के रूप में हमारे सामने आया है। तो कई बार कुछ ऐसे क्रॉस चीज़ें हमारे सामने आ जाती है, जैसे कि बालक ने हमको ये कहा कि वो बालिका मुझे अपने साथ ले गई थी, तो वहाँ पर ये चैलेंजेस हो जाता है कि बालक जो है वो विक्टिम है या बालक CCL
क्रिटिकल है। ऐसी परिस्थितियों में भी जो है कि जो हमारा पुलिस प्रशासन है, जब वो कोई FIR या कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है वो दैनिक डायरी में नोट डाउन कर रहा होता है, तो वो सारी परिस्थितियों का यदि यथावत उल्लेख करेगा तो शायद ऐसी चीज़ों से जो है बचा जाएगा। क्योंकि एक बालक ऐसा देखने में आया सर कि वो मानसिक रूप से इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया कि उसने स्कूल जाना छोड़ दिया कि लोग मुझे ताने मारेंगे। माता पिता बोल बोल कर परेशान हो गए। एक ही बच्चा था, फिर हमने उसकी काउंसलिंग करी, वापस उसको स्कूल में जो है दाखिला कराया और धीरे धीरे जो है उससे बात करते रहे, आज वो स्कूल में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो बच्चा जब किसी भी संस्था या किसी के सामने भी पहली बार आता है तो उनकी ये ड्यूटी है कि वो इस विषय का ध्यान रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चा जो है जिसने कोई गलती नहीं की है या नासमझी में कोई ऐसी चीज़ उससे हो गई है तो उसको समाज से कहीं इस तरह से हम अलग ना कर बैठें कि वापस उसको जोड़ना इतना कठिन हो जाए कि हम सभी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू सर। मैडम द्विवेदी, आपने वो मेंटीमीटर का कुछ कर सकती क्या अभी इसमें, कि अगर अभी कोई सजेशंस किसी के हों तो हैं, तो वो थोड़ा सा ज़रा आप प्रोसेस बता दें, है ना। हाँ, तो अभी इस सेशन के बाद वो मैडम द्विवेदी बताएंगी वो जो सजेशंस का मेंटीमीटर का, तो उसमें जो आपके सजेशंस हो आप दीजिए, तो उसको कोशिश करें कि हम एड्रेस कई लोग बोलने में अगर हिचकें भी तो भी उसको, ताकि वो हम उसको ले सकें। अब वो मैडम जो ये स्टीरियोटाइप है CICL इज़ बॉय, CNCP इज़ गर्ल, ये भी एक स्टीरियोटाइप है। आपने यानी ये भी एक बायस या प्रेजुडिस हो सकता है मेंटल, तो अदर वे भी हो सकता है कभी कभी। जय गुलाटी साहब, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू सर। आपने कुछ इश्यूज जो है रेड फ्लैग किए थे, भिंड और मुरैना में आपने बताया था लड़कियां जो है 15 से 19 साल के बीच में वो तकरीबन 55% उसमें से जो है एनीमिक आपने बताया था, एंड दैट यू रेड फ्लैग्ड इट करेक्टली एज अ चैलेंज। लेकिन वो जो उनका जो द फैक्ट दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया इज द सिम्टम, the reason behind it, what is it the reason? Is it because of old age, misogyny, then patriarchy, that the girl child is given less? Have you gone behind that reason to find out the cause, and how do you propose to answer that cause? जब तक उसको नहीं मिटाएंगे तो ये 15 से 19 के बीच में जो लड़कियां हैं उसमें से 55% will always suffer from anemia. So how do you address the cause for that? Address it after identifying what it is. Sir, thank you very much, Honorable Justice Sir. Thank you very much for your question. 55% of 15 to 19 years of girls are anemic in Madhya Pradesh. Definitely diet, the way they are fed, the way they kind of eat has a challenge. Government has solution to it. Government actually gives IFA tablets and vitamin C to all the girls which are at that age group. But also is the addressing the basically diets, kind of what they are eating is also important, and also not ignoring the fact that they don't get that adequate diet is also an important question. Maybe my colleague Pushpa is also here as a nutrition or knowledgean would like to. Yeah. No, please, sir. That is once again you are again treating the symptom by giving medicines. But the main problem may be within the family, which feels that as a girl, that much of nutrition is sufficient for her. How do you go about trying to change the mindset of the parents and the adult population in this country that it's because of you or the prejudices that you bear that this 55% of them are suffering from anemia? You can treat them by vitamin tablets, but that's again a temporary, it's not still addressing the main issue. I actually go by bingo what you're saying, sir. It's addressing the mindset here. That is quite. Government has, sir, its own IC cells and SBC cells, social behavior change cells. There is a campaign which government runs on social and behavior change. But, sir, mindset, I think so in earlier session we talked about, and ma'am was saying that mindset doesn't change it overnight. It really requires an intensified effort to make sure. Second is also the usage of IFA tablets and what is being provided by government. That needs to also increase. And then you also need to make sure that the girl child gets an equal and better diet than even a boy child. You shouldn't have a differentiation. And that is here actually. And that is a reason I say is that we need a larger campaign, a major campaign to make sure that we address this challenge. In fact, anemia is linked to maternal deaths which are happening as teenage pregnancies get linked to anemia. If you look at in fact, I was with corporates. I was saying your GDP actually gets declined because of anemia, because the productivity goes down because of anemia. अर्लियर सेशन में ये बात उठी थी
जो गायनेकोलॉजिस्ट थी डॉक्टर तिवारी, उन्होंने ये बताया यही पॉइंट कि बिकॉज ऑफ दिस वो एनीमिक होती जाती है, क्योंकि फैमिली स्टार्ट्स नेग्लेक्टिंग द गर्ल कि अब वो प्यूबर्टी ले ली है तो इसकी शादी करना है, पढ़ाई छोड़ना है, और ये वाली चीज़ एक साइड इफ़ेक्ट है इसका। हाँ, जय हिंद सर। मैं आकांक्षा उपाध्याय डीएसपी जबलपुर से हूँ। जैसा कि सर मैडम ने अभी एक अच्छा पॉइंट उठाया कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं और एनर्जी, मैं कहूँगी कि 10 से लेके सर 18 ईयर्स तक लगभग सभी बच्चों में एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हमारे घर के बच्चे हों या कोई भी बच्चे, देखने में आता है सर उनकी एनर्जी को कोई चैनल नहीं मिलता है। हम उसको चैनलाइज किसी भी तरीके से नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसे स्कूल एजुकेशन है या उसके अलावा भी स्पोर्ट्स जो है सर, वो मुझे लगता है कंपलसरी होना चाहिए। हम वंस इन अ वीक देते हैं या 15 डेज में एक कोई स्पोर्ट्स पीरियड रखते हैं, जबकि वो जो एनर्जी है सर वो उनके पास बहुत ज़्यादा है। वो दिन भर स्कूल करते हैं, उसके बाद भी घर आते हैं तो निकल जाते हैं बच्चों के साथ खेलने के लिए, पर वहाँ पे जो उनका एनवायरनमेंट है वो हम चेक नहीं कर सकते। उसके जगह पे अगर सर हम एक कंपलसरी स्पोर्ट्स पीरियड और एक मेडिटेशन का पीरियड स्कूल्स में करने की कोशिश करें तो उसको एक प्रॉपर जो एनर्जी है सर वो 1-1.5 घंटे प्रॉपर खेलने के बाद बच्चा थक जाता है। दूसरा सर, स्पोर्ट्स में इतना अच्छा बच्चे को लगता है, जो उनका डोपामिन वगैरह रिलीज होता है कि फिर वो जो नशा है, जो अन्य चीज़ें हैं, उन्हें वो सब करने की ज़रूरत उतना होती नहीं है। इसका सर एक एग्जांपल जैसे कि सदगुरु ने भी स्टार्ट किया था कोयम्बटूर और आसपास के गांव में, तो सर वहाँ पे लोगों ने कास्ट और बहुत सारे बैरियर्स को तोड़ के स्पोर्ट्स को प्राथमिकता दी, और इसके कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए भी हैं सोशली कि स्पोर्ट्स में बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और फिर वो जो नेगेटिव उनकी चीज़ें हैं उसको छोड़ देते हैं। तो सर एक छोटा सा सजेशन है कि अगर हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको थोड़ा सीरियसली ले और जो हमारा जो हमारे पीरियड्स होते हैं वंस इन अ वीक होते हैं या 15 डेज होते हैं, वो कोशिश करके डेली उसको शामिल किया जा सके। थैंक यू सर। मैडम रश्मि, कोई एजुकेशन से है क्या यहाँ, कोई स्कूल एजुकेशन से? क्योंकि स्कूल एजुकेशन में एक ये बहुत बड़ा फ्लॉ है कि स्पोर्ट्स को तो बहुत ही नेग्लेक्टेड रखते हैं। कभी कभार एक पीरियड रहता है सप्ताह में एक दिन, और वो भी लास्ट रहता है जब बैग उठा के लोग बाउंड्री पे खड़े रहते हैं कि जैसे ही घंटी बजे तो हम चले जाएं। वो डेफिनेट स्पोर्ट्स इस टाइप से कुछ नहीं रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसा मैडम ने बताया, स्पोर्ट्स वो वाले जो एक्शन जिसमें है, जैसे हॉकी, फुटबॉल या टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जिसमें एक्शन टाइम इतना है कि आदमी अपने आप को भूल जाता है। वो क्यों, आप कह रही हैं कि क्यों आदमी फील करता डोपामाइन इसलिए फील करता है, डांस में भी वो चीज़ है कि जैसे ही आपने अबाउट योर एग्जिस्टेंस आपने अपने आप को भूला कि आप अच्छा फील करते हैं, और वो फीलिंग जो है वो आपको डोपामाइन देती है। तो ऐसे स्पोर्ट जिसमें एक्शन टाइम है, फुटबॉल, हॉकी, इवन क्रिकेट भी, बैडमिंटन, टेबल, चेस में, कैरम में शायद ये नहीं रहेगा, लेकिन जो एक्शन टाइम स्पोर्ट्स, डांस में, इन चीज़ों में, या म्यूज़िक वो वोकल या इंस्ट्रूमेंटल में, तो अगर स्कूल एजुकेशन से कोई हो, और आप नहीं तो मैडम आप थोड़ा सा नोट कर लें और उसको थोड़ा सा बताइए इस चीज़ को। स्पोर्ट्स पीरियड्स तो रेगुलर होने चाहिए। एक सप्ताह में एक दिन का स्पोर्ट्स तो कोई स्पोर्ट्स ही नहीं है, वो तो केवल टाइम पास है, वो लास्ट पीरियड का। तो कुछ ऐसा कुछ हो सकता हो कि स्पोर्ट्स को रेगुलर रखें, तो वो सही कहना उनका कि 12 से 18 साल में, 17 साल में बच्चों को बहुत एक स्ट्रेस बस्टर या रिलीविंग रहेगा। और कोई सजेशन हो तो? नमस्ते सभी को, मेरा नाम साक्षी वर्मा है। मैं यूनिसेफ सेफ सिटी प्रोजेक्ट यूथ लीडर हूँ। मैं चाहती हूँ, मतलब हम चाहते हैं कि स्कूल लेवल पर एक मेंटल हेल्थ टीम बननी चाहिए। जो जितने बच्चे हैं उन्हें जो परेशानी हो रही है तो वो आके हमसे शेयर करें, या जो टीम बन रही है उनसे शेयर करें, ताकि सुसाइड के जो केसेस हैं वो कम हो। और ये टीम जैसे NSS और NCC है, स्कूल में रजिस्टर टीम है, मतलब रजिस्टर है, वैसे ही MHPSS की भी होनी चाहिए। आगे जो जितने सुसाइड केसेस हो रहे हैं बच्चों को बहुत सपोर्ट मिलेगा। जिस तरीके से हम काउंसलिंग कर रहे हैं बस्ती स्तर पर, वैसे ही वहाँ होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या हो सकता है, और ये टीम ना स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दोनों पे रजिस्टर हो सकती है, क्या कनेक्ट कर सकते हैं हम इससे? डॉक्टर प्रशांत शायद एड्रेस कर लो। डॉक्टर प्रशांत अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें। वो यूनिसेफ से। यूनिसेफ। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत है, मैं यूनिसेफ में हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ।
काफ़ी डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है कि स्कूल में क्या कर सकते हैं बच्चों को जानकारी देने के लिए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट जॉइंटली स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें 10 to 19 ईयर्स के जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं और इवन आउट ऑफ स्कूल बच्चे भी हैं, उनको 11 थीमेटिक एरियाज़ के बारे में पूरे साल में करिकुलम में कवर किया जाता है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, डिजिटल एडिक्शन हो गया और रिलेशनशिप के बारे में, ये सारे जो न्यूट्रिशन, सो ये सारे 11 थीमेटिक एरियाज़ के बारे में स्कूल में बताया जाता है। उसमें स्कूल टीचर्स को ट्रेन किया जाता है एज एम्बेसडर्स, और जो क्लास के बच्चे होते हैं उनमें एक बॉय और एक गर्ल को एज मैसेंजर्स भी ट्रेन किया जाता है, जो एज ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उस क्लास के सारे बच्चों के लिए ये सारे टॉपिक्स के बारे में उनको पढ़ाया जाता है। ये ऑलरेडी स्कूल डिपार्टमेंट में 9th to 12th स्टैंडर्ड में चल रहा है उमंग के नाम से, और इसी साल में 6 to 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी ये रोल आउट किया जाएगा। उमंग विच कैन इंक्लूड्स हेल्थ डिपार्टमेंट एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम एंड लाइफ स्किल्स एजुकेशन, ये दोनों को कंबाइन करके मध्य प्रदेश में उमंग के नाम में रोल आउट हो रहा है। थैंक यू। देयर इज़ जस्ट अ स्मॉल अनाउंसमेंट। चूँकि हम चाहते हैं आप लोगों के व्यूज़ भी जानना, और माइक सब तक समय की पॉसिटी है, समय सीमा है, तो इसलिए सब तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन हमारे लिए हर एक वॉइस मैटर करती है। और मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि एक स्कैन कोड दिख रहा है आपको, इसे मेंटीमीटर कहा जाता है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से अगर इसे स्कैन करेंगे तो मैं आपको एक स्लाइड पे लेके जाऊंगी, जहाँ पे एक ओपन एंडेड स्लाइड रहेगी, जहाँ पे आप अपने सजेशंस, क्वेश्चंस उसको डाल सकते हैं। जो भी सेशन रहेगा ऑनरेबल चेयर के सामने हम आपके सजेशंस, क्वेश्चंस को रख पाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको स्कैन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन से। जस्ट इन केस अगर आपके मोबाइल फ़ोन का स्कैनर कोड नहीं वर्क कर रहा है तो आप menti.com गूगल कर सकते हैं, और ये जो कोड दिख रहा है आपको 14965362, इसे आपको एंटर करना रहेगा। आई रिपीट, आप गूगल कर सकते हैं menti.com, जहाँ पे आपको 14965362 इस कोड को आपको एंटर करना रहेगा, और इसके थ्रू आप एक स्लाइड पे मैं आपको ले जाऊँगी जहाँ पे आप अपने सजेशंस डाल सकते हैं। ये सजेशंस, क्वेश्चंस हम सतत रूप से देखते रहेंगे और माननीय चेयर के सामने भी पहुंचाएंगे। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि दैट ईच एंड एवरी वॉइस सिटिंग इन दिस ऑडिटोरियम मैटर टू अस, योर व्यूज़ मैटर टू अस। इसमें आप अपना ज़रूर बढ़ चढ़ के योगदान दीजिए कि किस प्रकार से हम गर्ल चाइल्ड को बेटर कर सकते हैं। Thank you to all our panelists for those valuable insights and profound discourse. अभी हमारे पास जो है कुछ मिनट्स हैं, अगर किसी का अभी और कोई प्रश्न हो तो वो अभी अपना प्रश्न, ये हमारे पास एक बहुत दुर्लभ क्षण है कि जब इतने अनुभवी व्यक्ति हमारे सामने हैं। Thank you. With this, we come to the end of this session. I take the privilege of expressing our deepest gratitude to our resource persons. Thank you, Lord. We are just about to begin the next session, so please remain seated. हमारे स्कूल में केमिस्ट्री का टीचर अवेलेबल नहीं है। हमारी त्रैमासिक परीक्षा आ गई है, मतलब अभी आए हैं, करीबन 4 क्लास ली हैं सिर्फ मैम ने, तो मतलब कैसे हम लोग पढ़ें, टीचर ही नहीं आ पाते हैं जल्दी। हमारा बस यही क्वेश्चन है कि क्यों नहीं आते हैं वो जल्दी। आधा कोर्स कंप्लीट हो गया, त्रैमासिक परीक्षा हो गई, अब वो मैम आई हैं, हम लोग क्या करेंगे, पेपर में क्या लिखेंगे? यही क्वेश्चन था हमारा।